Namaskar to everyone. We welcome all to the Manage Krishi Gyandeep Knowledge Lecture Series 12 being conducted today on 31st March 2022. Manage organizes Krishi Gyandeep Knowledge Lecture Series by inviting eminent persons from varied fields of agriculture and development sectors to motivate and inspire the professionals. Here, we invite outstanding personalities to manage to share their knowledge essence through live lectures to its faculty members, participants of training programs, students, and invitees from the leading institutions and various networks of manage. These lectures are recorded as video films to share through Manage YouTube and other social media so as to reach to a larger audiences that includes officers of state departments of agriculture and allied sectors, faculty members of state agricultural universities, samitis, extension education institutes, scientists of Krishi Vigyan Kendras, agripreneurs, non-governmental organizations, and public at large. Today, we are privileged to invite Sri Dhyaneshwar Bodke ji, Chief Volunteer, Abhinav Farmers Club, Pune, Maharashtra. Welcome, sir. Now I request our Director General, Dr. P. Chandrasekhara, to welcome and introduce today's eminent personality. So, good morning to all of you. On behalf of Manage family, I would like to extend a warm welcome to all the participants. I'm very happy to see several Manage facilitators, representatives of Samitis, EAs, and many more Manage faculty members, and many more are part of this very interesting talk. My colleague Dr. Jaya already explained to you what is the purpose of Manage Krishi Gyandeep Knowledge Lecture Series. The effort is to connect the last mile extension worker with the best of the best brains in the country in the field of agricultural extension management. We have conducted 11 and this is the 12th in the series. And today we have a very esteemed speaker, Gyaneshwar Bodke, Chief Volunteer of Abhinav Farmers Club from Pune. I visited him several times individually, and I also part of several. I took national and international trainees to Bodkeji's farm. We talk about market-led extension, group-led extension, PPP-led extension, ICT-led extension, and agripreneurship-led extension. If you want to see all at one place, you should visit Gyaneshwar Bodkeji farm. As a basic principle of extension, we talk about whole family approach. In letter and spirit, if you want to see whole family approach in agriculture development and farmer to farmer extension, we should visit Gyaneshwar Bodke's farm. I'm extremely happy to see Gyaneshwar Bodkeji and extend a warm welcome to you on behalf of Manage family and all our participants here today. I would like to, you're going to listen to him. A very interesting talk in Hindi. Very nicely, he will communicate his feelings. But I will give a brief introduction about the today's speaker. Gyaneshwar Bodke is from any ordinary family. Just like you see in any village, a farmer taking up agriculture. He got married. He studied up to 10th class, settled in village. And afterward, normally young people, they have very big ambitions. But in agriculture, he didn't find solution to all his dreams. He struggled a lot for 10 years. The same, the story of every Indian farmer that continued with Gyaneshwar Bodke also. But the real turning point came, we talk about, the importance of capacity building in agricultural extension. That was a movement which really turned the entire life of Gyaneshwar Bodkeji. In 1999,
he went to a horticulture training center in Talegaon, which is very close to Pune. And they talk about, polyhouse, productive cultivation technologies. They train the farmers. So he went for a very short training, but this dreamy farmer got inspired out of that. He did not discontinue. 1 year he continued in the same horticulture training institute as a trainee without any salary. You can just imagine his urge and the seriousness in acquiring the technology. After 1 year, he came back and started a poly house in 1,000 square meter, and his family started working. They grown flowers, and he took 10 lakh rupees loan with interest. He repaid within 1 year. Afterwards, this confident farmer never looked back. Some 17 young people around his farm, they got inspired. They all decided that they should have their own youth club. Abhinav Farmers Club was born on 15th August 2004 with 305 farmers. They diversified into fruits, vegetables, exotic vegetables and fruits, and they involved the family, whole family approach. The women were involved in cultivation, grading, sorting, packing. The children were involved in transportation and door delivery. They used ICT application, mobile based app for selling their fruits and vegetables, and the name and fame you continuously spread across the country. So he then decided, you see, this is very important for all the extension professionals working in the field of capacity building. He then decided, if single training can change my life, why I should not start my own training center and start training the farmers. So he is sitting in his training farm. In the background, you can see his training center. He started his own training center, and in 20 years, and an average 1 lakh farmers visited his farm in an year. 20 lakh farmers, he visited his farm. 45,000 farmers got training, short-term training program. 27,000 farmers, they adopted polyhouse technology, and he want to spread this message to 42,000 villages across the country. So he is part of several policy making bodies across the country and got several big list of awards are there. He got award from NABARD, got award from Government of India, and several social organizations recognized his contribution for inspiring young people, for attracting and retaining in agriculture, and he is a success story today. And some of the few learnings out of him, his success story is, number one, training is very important to inspire a farmer, and it gives him a lot of confidence. Second one, the inspired farmer can lead form a group, and he can bring a change in the group, and linkage with the market using technology and using entire family in agriculture. It can make agriculture attractive and profitable. And here is a person who showed agriculture is profitable. Farmer can earn 1,000 rupees per day just by working 3 hours in a day. So this is a great inspiring story. We can listen to Gyaneshwar Bodke ji. Thank you very much for joining this group. आप आपका एक्सपीरियंस शेयर करिए. हम तो बहुत इंटरेस्टेड है आपका स्टोरी सुनने के लिए. थैंक यू. नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर बोड़के है. मैं अभिनव फार्मर्स क्लब पुणे का चीफ वॉलंटियर हूँ. हम लोग पुराना वाला फार्मिंग करते थे और पुराना वाला फार्मिंग में दिक्कतें आती थी, इसलिए ग्रुप बनाया. और आज जो प्रोग्राम है वो मैनेज की तरफ से रखा गया है. इस प्रोग्राम में मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और डायरेक्ट मार्केटिंग उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा. तो इसमें ट्रेडिशनल फार्मिंग में परवड़ता नहीं था बिल्कुल. फार्मिंग में यहाँ पे हम लोग राइस उगाते थे, लेकिन राइस में 35,000 रुपए खर्चा करके 8,000 9,000 का राइस बेचते थे. मैं बोला कितने दिन ये चलेगा, लॉस में क्यों हम लोग फार्मिंग करेंगे. फिर मैंने वो फार्मिंग पुराना वाला छोड़ दिया. एक स्टोरी पढ़ी मैंने न्यूज़पेपर में,
जिस स्टोरी में मैंने देखा कि एक पॉली हाउस है 10,000 स्क्वायर फीट का और उसमें फ्लावर लगा के एक किसान अच्छा पैसा कमा रहा है, तो मैं बोला क्यों ना हम लोग भी वैसा ही काम करेंगे। उसको 12 लाख रुपए मिला था 1 साल में 10,000 स्क्वायर फीट में। मैं बोला जिंदगी में कभी लाख रुपए नहीं देखा और ये किसान 12 लाख कमा रहा है। उसके पास गया, उसका फार्म देखा, एकदम सिंपल वाला 8 पड़ा हुआ किसान था। खेती में मैंने देखा कि सब लोग लॉस वाला काम करते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे किसान फार्मिंग करते हैं, लेकिन लॉस का फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है। हमेशा गवर्नमेंट पे डिपेंड रहते हैं। तो मैंने और बड़े-बड़े आज जो ऑफिसर है आपके साथ, मैं सबसे विनती करता हूँ कि कोई भी योजनाएँ किसान के लिए बनाएँ। किसान की उन्नति हो उसके लिए अगर बनाएँगे, अगर किसान की उन्नति नहीं होगी तो किसान खाना नहीं तैयार करेगा, किसान ने खाना तैयार नहीं किया तो पूरा देश भूखा रहेगा। ये सिंपल सिस्टम है। तो कोई भी योजना किसानों के लिए होनी चाहिए, उसके लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कार्नेशन फ्लावर का पॉली हाउस 10 गुंठे का उसके लिए एक ट्रेनिंग किया, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ पे भी थ्योरेटिकली हमारे कंट्री में ज़्यादा थ्योरेटिकल पे ध्यान देते हैं। मेरा आपसे सबसे विनती है, कम से कम 50% प्रैक्टिकल की रहने दें दीजिए और 50% थ्योरेटिकल। तो इसीलिए फ्लोरिकल्चर में काम शुरू किया। कोर्स में ज़्यादा समझ नहीं आई इसलिए 1 साल तक उनके फील्ड पे फ्री में काम किया। इस काम से मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन करोड़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसा ये ज्ञानदीप आज प्रोग्राम रखा है आपने, वैसा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया और उस ज्ञान की वजह से मैंने 10 गुंठे का पॉली हाउस के लिए बैंक में प्रपोज़ल डाल दिया। मैंने उनके साथ बैंक के साथ बात किया मैनेजर के साथ कि साहब मैं 10 गुंठे में 10,000 स्क्वायर फीट में मैं पॉली हाउस लगा रहा हूँ। रोज़ मैं 1000 2000 का फ्लावर बेचूँगा। आपका इंस्टॉलमेंट उसमें से ₹500 है, वो ₹500 मैं रोज़ साइड को रखूँगा और आपका रिपेमेंट करूँगा। हस्बैंड वाइफ घर माँ पिताजी सब लोग काम करने लगे। मैं किसान से विनती है मेरी कि पूरा फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ले लो फार्मिंग में। फार्मिंग में सिर्फ अकेला किसान काम करेगा और घर में 15 लोग खाएँगे, ऐसा नहीं हो जाएगा अभी। सबने काम करना चाहिए। सबने काम करने से नौकरी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। अलग-अलग टाइप का वाइफ जो है किसान की, वो काम करेगी मार्केटिंग का और किसान है, वो काम करेगा फील्ड पे। क्योंकि महिलाएँ जो है, वो थोड़ी-सी उनकी सॉफ्ट बात होती है। हम थोड़ा-सा चिल्लाते हैं तो हमारे पास से कोई सब्ज़ी नहीं खरीदता, धान नहीं खरीदता। लेकिन औरतें मीठी बात करती है, रेसिपी बोलती है, मेडिसिनल वैल्यू बोलती है तो कोई भी उससे खरीदेगा। इसलिए औरतें में मार्केटिंग का काम करेगी और हम लोग फार्मिंग करेंगे। फार्मिंग के लिए लेबर का प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है। इंडिया में, वर्ल्ड में सब जगह पे लेबर का प्रॉब्लम है। मैनेज मैनेज का काम तो बहुत अच्छा है। मैनेज बहुत सालों से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बना रही है। मतलब किसान को भी एक इंडस्ट्री में काम करता है वैसा आदमी बनाने का मैनेज काम कर रही है। बहुत अच्छा काम है। मेरा भी 2005 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, सांगली में हो गया, हैदराबाद में हो गया। तो मुझे मैनेज से क्या सीखने को मिला तो मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर में अगर मैनेजमेंट आएगी तो काम बन जाएगा। आपका बहुत अच्छा सब सिस्टम है, लेकिन आप बार-बार गवर्नमेंट के साथ मिले हैं इसलिए हम लोग आपको बार-बार बोलते हैं कि इसमें काम कीजिए, उसमें काम कीजिए, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आपको बोलेंगे, आप टेक्निकल उसको जोड़ेंगे, काम बन जाएगा। दोनों का आपका 100% विज़न है कि किसान अमीर होना चाहिए। किसानों के लिए आपको उसको मैनेजमेंट और ये सब करने का है, तो मेरा भी 2 बार ट्रेनिंग हो गया है, उसकी वजह से मुझे मैनेजमेंट आया। मैं बाकी लोगों को भी विनती करता हूँ कि मैनेज के जितने भी कोर्सेज़ है अच्छे, वो आप कीजिए, क्योंकि आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है और वहाँ पे अच्छा सराउंडिंग है, अच्छा सिम फिर फ्लोरिकल्चर में काम शुरू हो गया, सब काम करने लगे। सब लोग पुणे और मुंबई में फ्लावर बेचते थे। मेरे फ्लावर हार्वेस्टिंग को 2 महीना बाकी था। उसके पहले मैंने मार्केटिंग शुरू किया। मार्केटिंग पुणे देखा, मुंबई देखा तो रेट बहुत गिरते थे। लेकिन दिल्ली में मैंने देखा कि कार्नेशन जो फ्लावर है, उसको बहुत अच्छा डिमांड है। दिल्ली में नई दिल्ली में हनुमान मार्केट है, आपको मालूम है आज भी वो मार्केट है। मैं 22 साल पहले की बात आपको बोल रहा हूँ और आज भी शुरू है। तो मैंने मार्केट देखा तो वहाँ पे 3 महीने के बाद मेरे फ्लावर कटिंग हो गए। अच्छा बंच बनाया। पुणे में ट्रेन जाती है झेलम, झेलम से पैकिंग करके भेज दिया और दिल्ली में अच्छा पैसा भी मिला। देखते-देखते 1 साल में मेरा 10 लाख का लोन रीपे हो गया। मैं पूरा पैसा बैंक में ही जमा करता था। बैंक वाले बोले कि आपको तो हर महीने में 10-15 हज़ार भरना है, आपके अकाउंट पे 50-60,000 आते हैं और अभी तो आपके अकाउंट में पूरे 10 लाख जमा हो गए। उसमें एनएचबी का सब्सिडी भी था 2,23,000। तो अभी किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन हो गया सब। नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ऑनलाइन हो गया। वो एक अच्छा काम हो गया सब सिस्टम में।
ऑनलाइन की वजह से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं किसानों को। ये सब सिस्टम में फ्लोरिकल्चर अच्छा शुरू हो गया, चलने लगा। सब लोगों हमारे घर के भी लोग खुश हो गए और एक दिन बैंक ने बोला कि आपका पूरा लोन रिपे हो गया है, 14 मंथ हो गए। तो उसका न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया, दूरदर्शन पे दिखाया गया। सब लोगों को पता चला कि इतने छोटे जगह में इसने 1 साल में रिपेमेंट किया। लोगों को 10-10 साल लगते, 15 साल लगते और इसने 1 साल में रिपे किया। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे। मैंने उनको समझाया कैसा फार्मिंग करने का है और 5 लोगों ने ऐसा ही फार्मिंग शुरू किया, वो भी सक्सेस हो गए। मुझे लोन मिला था 6 महीने बाद, उनको 8 दिन में लोन दिया बैंक ने। लेकिन बैंक के पास अभी मेरा पूरा अकाउंट का स्टेटमेंट था। बैंक बोले कि 14 मंथ में इसने अच्छा पैसा कमाया, ये हमारे पास पूरा स्टेटमेंट है, क्योंकि मेरा पैसा पूरा अकाउंट में जमा होता था। किसान क्या करता है, हाथ में पैसा लेता है, बैंक में जमा नहीं होता, बैंक वालों को भी पता नहीं चलता। फ्लोरिकल्चर में हम सक्सेस हो गए। बाकी 5 लोग भी सक्सेस हो गए। मुझे 6 महीना लगा था बैंक का लोन लेने के लिए। बाकी लोगों को मेरा अकाउंट देखकर 8 दिन में लोन सैंक्शन किया। मैं ही सबको जामीनदार था। तो सबको अच्छा लगा, 5 लोगों का सक्सेस हो गया। फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग ग्रुप बनाएँगे। फिर नाबार्ड ने बोला कि आप ग्रुप बनाओ, हम भी थोड़ा-सा आपको हेल्प करेंगे। फिर नाबार्ड ने 17 लोगों को लेकर मैंने अभिनव फार्मर्स क्लब ग्रुप 2004 में शुरू किया, 15 अगस्त 2004 और 2004 में हम लोग 17 लोग थे और 2005 में 305 लोग हो गए। सब ने पॉली हाउस किया, सब दिल्ली में भेजना शुरू किया क्योंकि मेरा उनके साथ दिल्ली में टाई अप था, तो टाई अप में सबको अच्छा पैसा मिलने लगा। फिर सबको पता चला कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो सकता है, सिर्फ मार्केटिंग टाई अप होना है और पूरे फैमिली ने काम करना चाहिए। फिर फ्लोरिकल्चर में हम सक्सेस हो गए। हमारा देखकर महाराष्ट्र में बहुत सारे पॉली हाउस खड़े हो गए और सब ने फ्लोरिकल्चर किया और सब दिल्ली में भेजना शुरू किया। दिल्ली का फ्लावर का डिमांड था 2 लाख फ्लावर का, 20 लाख फ्लावर जाने लगे, रेट गिर गए फ्लोरिकल्चर के। फिर क्या करने का, ग्रुप में झगड़े हो गए। हम लोग 23 लोग बचे, बाकी ग्रुप टूट गया। ग्रुप टूटते बहुत ज्यादा है, तो ग्रुप टूट गया। हम 23 लोगों ने तय किया कि हम खेती नहीं छोड़ेंगे, लॉस होने दो, हम क्रॉप चेंज करेंगे। फिर हमने फ्लोरिकल्चर बंद किया क्योंकि फ्लावर खाने का चीज है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अब देखा जाए तो 2% लोग फ्लावर का इस्तेमाल करते हैं, फ्लावर्स का डेकोरेशन के लिए, फंक्शन के लिए। तो ये 2% के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे, हम 100% के लिए काम करेंगे। तो 100% लोगों को क्या चाहिए, सब्जी चाहिए, दान चाहिए, मिल्क चाहिए, फ्रूट चाहिए, उसका काम शुरू किया। किसानों ने टाइम के टाइम बदलना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में देखो लॉस आया तो इंडस्ट्री बदलती है, दूसरा प्रोडक्ट निकलती है। किसान क्यों नहीं करते ये सब? हमेशा किसान लॉस, ये गलत है क्योंकि जो किसान लॉस में वो वही क्रॉप वापस लेता है। चेंज होना चाहिए ना, जिसको डिमांड है वो करेंगे। हमको बदलना बहुत जरूरी है, अलग अलग क्रॉप के काम होना बहुत जरूरी है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत जगह पे शुरू है। तो जैसा हरित क्रांति में केमिकल फार्मिंग में बहुत काम किया आप लोगों ने, मेरी आपसे विनती है कि अभी आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कीजिए। प्रोडक्ट प्रोड्यूस कम होता जा रहा है, आप प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए काम कीजिए ना। लेकिन आप भी मैनेज जैसे जो इंस्टीट्यूट है बाकी सब, उनका एक ही रीजन है कि पहला किसान अमीर होना चाहिए, तब दुनिया अमीर हो जाएंगी। सब लोग किसान पे डिपेंड है। आपने देखा कोरोना के टाइम सब इंडस्ट्रियां बंद थी, अगर हम बंद रखते थे तो सब लोग क्या खाते? किसान अगर काम बंद रखता तो सब मरते थे, कोरोना से नहीं, खाना नहीं इसलिए। कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो मेरी आपसे विनती है कि किसान को भी हर सिस्टम में जहाँ पे आपकी कमेटी बनती है, वहाँ पे बड़े बड़े साइंटिस्ट आप लेते, पढ़े लिखे लोग लेते, उसमें किसान क्यों नहीं होने चाहिए? 1-2 किसान हर कमेटी पे किसान को लेना बहुत जरूरी, क्योंकि हम प्रैक्टिकल आपको बोलेंगे ना, आपका टेक्निकल और हमारा प्रैक्टिकल एक साथ हो जाएगा तो हम दुनिया को खाना खिलाएंगे। हमारे कंट्री में गर्मी है, बारिश है, ठंडी है, तीनों सीजन है। जिस कंट्री में तीनों सीजन है, कुछ भी उगा सकते हैं, कभी भी उगा सकते हैं और लोगों को खिला सकते हैं। बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, उसका भी फायदा हो जाएगा। बहुत बड़ा जमीन है, बहुत बड़ा पानी है, सब बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छी है हमारे कंट्री में। ये सब इतना अच्छा होकर मैं इजराइल गया था, वहां पे मैंने देखा कि सैंड में फार्मिंग करते, वहां पे तो मिट्टी भी नहीं है, पानी भी 200-300 मिलीमीटर बारिश होती है। हमारे यहाँ पे 1200 मिलीमीटर बारिश होती है, तो भी हम बोलते हैं दुष्काल है। तो वहां पे क्यों नहीं मैनेजमेंट लगाया? जैसा आप हमें मैनेजमेंट सिखाते हैं, वैसा ही सबने सीखना चाहिए और मैनेजमेंट भी खेती में लगानी चाहिए। फिर फ्लोरिकल्चर में प्रॉब्लम आने लगा तो हम लोगों ने एक्सोटिक वेजिटेबल शुरू किया, ब्रोकोली, चाइनीज कैबेज, सेलरी, पार्सली, जुकेनी, चेरी टोमेटो। और ये सब मॉल में हमने योगेश भाई शाह करके पुणे में थे,
उनके साथ टाइप किया। वो बोले कि आप ऑर्गेनिक कीजिए। पहली बार मैंने ऑर्गेनिक वर्ड सुना 2005-6 में। तो वो बोले कि ऑर्गेनिक दीजिए, आप जो मांगेंगे वो रेट हम देंगे। मैंने पहली बार देखा कि किसान को बोलते हैं कि आप बोलो क्या रेट चाहिए आपको। पहली बार हाँ। मेरी आप सबसे विनती है कि किसानों को भी पूछिए, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना सिखाइए। प्रोडक्शन कॉस्ट पे काम होना चाहिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए ये लिखिए, वो लिखिए, डायरी नोट कीजिए। किसान का काम है आपको सबको खाना खिलाना। हमारी जिम्मेदारी खाना खिलाने की है। मशीनें सिंपल बनाओ ना। मेरा लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है प्रमोद, वो भूषण राउत करके है, सागर जाधव करके, ये सब 3-4 लड़के मिलकर छोटी-छोटी मशीनरी बना रहे हैं। तो मशीनरी भी सस्ती होनी चाहिए हमारे पास और जितनी जरूरत है उतनी। सब हेवी ड्यूटी, काहे के लिए हेवी ड्यूटी? इतना बड़ा ट्रैक्टर वो जमीन पे आता है तो जीवाणु मट्टी मर जाती है। 4 इंच की मट्टी जो जिंदा मट्टी है, उसका वेट भी नहीं वो ले सकती। इसकी वजह से जमीनें खराब होती जा रही दिन भर दिन। तो छोटी छोटी हल्की हल्की मशीनरी किसान को चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं, ऐप का इस्तेमाल कर कर सब्जी क्यों नहीं बेचेंगी? एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़कियां है, वो सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर बेचने के लिए शॉप डालते हैं, सेवा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र। लेकिन वो ये नहीं काम करती कि ऐप लेकर किसानों का मटेरियल ऐप पे लाए और उसको 2 रुपए बेचकर कैसा ज्यादा मिले, उसके बारे में कोई काम नहीं कर रहा है। सबको जॉब चाहिए, जॉब ही है ना। एक गांव में 100 किसान है, 100 किसान के लिए एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़की पैक हाउस बनाएगी। पैक हाउस में किसानों का मटेरियल खरीदेगी और सिटी के साथ जोड़ेगी, लेकिन किसी को फार्मर के साथ काम नहीं करना है। आपसे मेरी विनती है कि जो भी प्रोजेक्ट देना है किसानों को देना है, बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देना है। वो दूसरा प्रोडक्ट तैयार करेंगे ना, किसान के ही पास देना चाहिए। तो ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी वजह से हमें भी 2 रुपए मिल जाएंगे और आप लोगों को हम बिना पॉइजन वाला खाना खिलाएंगे। जिस दिन हम आपको बिना पॉइजन वाला खाना खिलाएंगे, उस दिन आपकी उम्र 100 साल तक बढ़ेगी। तो आपको अच्छा खाना मिलेगा और हमें भी 2 रुपए मिलेंगे, तो हमारी फैमिली भी अच्छी जिएंगी। आपके मैनेज में जितने फार्मर्स ग्रुप है, फार्मर्स क्लब है, उनके साथ अगर काम हो जाएगा, तो पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र के या पूरे देश के किसान अमीर बन जाएंगे। इंग्लिश वेजिटेबल शुरू किया, अच्छे चला, मॉल में देना शुरू किया। फिर वापिस सब लोगों ने इंग्लिश वेजिटेबल लगाया। एक 5 स्टार होटल में समझो चेरी टोमेटो खरीदना है तो 3 किलो खरीदते। 100 रुपए किलो का उसका रेट है, लेकिन डिमांड बहुत कम है होटल में। किसी भी मॉल में आप देखेंगे ये 5 किलो, वो 10 किलो, 20 किलो। मैं बोला ज्यादा खरीदो ना, क्योंकि हमने ज्यादा उगाया है। बोले उतना बेचना तो चाहिए ना, ये पेरिशेबल आइटम है, 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। इसलिए हम उनको जितना लगता है उतना ही लगाते। किसान क्या करता है, टनेज में तैयार करता है और किलो का पैसा लेता है। हम किलो में तैयार करते हैं, टनेज का पैसा लेता है। सिस्टम अलग है। कस्टमर की जितनी डिमांड है उतना ही उगाना चाहिए। बाकी का जमीन पड़ा रहने दो, कम से कम लॉस तो नहीं हो जाएगा। हम लोग 4 लाख रुपए खर्चा करके कोई क्रॉप लगाते हैं और उसका 1.5 लाख भी नहीं होता। क्या करेंगे ये सब? डिमांड सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एक्सोटिक वेजिटेबल में भी प्रॉब्लम आया, रेट गिर गए, मॉल ने सबने लगाना शुरू किया, क्योंकि डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा। फिर एक्सोटिक वेजिटेबल भी बंद किया हमने और हमने शुरू किया इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग? तो 1 एकड़ का फार्म होता है सबके पास, 1-2 एकड़ का। 1 एकड़ में 10,000 लीटर पानी लगता है, 10,000 लीटर पानी, 1 घंटे की सिंगल फेज बिजली, सोलर की भी चलेगी, हमें दिन में ही चाहिए। दूसरा, हस्बैंड वाइफ 2 आवर मॉर्निंग 2 आवर इवनिंग काम करेंगे। तीसरा, एक गाय चाहिए हमारे पास, देशी गाय, काऊ। देशी गाय बहुत जरूरी है। ये देशी गाय 8-10 लीटर दूध देने वाली चाहिए। गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, लाल कंधारी है, ये ब्रीड है। ये आज भी 50-60 हजार में मिलता है। रोज 10 लीटर दूध देगी, उसमें से 2 लीटर दूध घर में खाएंगे। 8 लीटर दूध मैं 70 रुपीज से भी बेचता हूँ। ऑल ओवर इंडिया में 70 रुपए तो रेट है 1 लीटर का उसका। तो ये दूध A2 मिल्क बोलते हैं इसको। इसमें बहुत अच्छे हाई प्रोटीन से रहते हैं। ये दूध से बिल्कुल चर्बी बढ़ती नहीं। हम दूध पीते हैं, रात को सोते हुए घूमते हैं, तो रात भर कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी नींद आती है। सुबह सुबह टॉयलेट भी क्लियर होता है, इसलिए दूध की जरूरत है। तो ये दूध 70 रुपीज गुनीले 8 लीटर, तो भी 500 रुपए मेरे घर में रोज आता है एक गाय से। 500 इंटू 30 डेज, 15,000 मिल गए। 15,000 में भी मेरी फैमिली में सस्टेन कर सकता हूँ। तो एक गाय। दूसरा, एक बायोगैस रखते, लकड़ी भी नहीं काटने की, क्योंकि नेचर को हम लोग खराब कर रहे हैं लकड़ी काट काट के। तो नेचर को नहीं खराब करेंगे, इसलिए बायोगैस। 15 किलो गोबर और 15 लीटर पानी और घर का 2-3 किलो किचन का वेस्ट, उसी के ऊपर बायोगैस चलाते हैं। तो मेरे घर में चूल्हा नहीं है 13 साल से, वही चूल्हा लगाया है। और उसकी स्लरी बाहर निकलती है 400 लीटर पर वीक। तो वो उसमें से 100 लीटर स्लरी में ड्रिप से
1 एकड़ को छोड़ता हूँ, कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। स्लरी में एन है, पी है, के है और 16 टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी, यही चाहिए ना जमीन के लिए। तो इसमें स्लरी छोड़ते हैं ड्रिप से। गाय को रात भर काऊ शेड में होती है, दिन भर पेड़ के नीचे होती है। पेड़ के नीचे दिन भर गोबर डालती है, गोमूत्र डालती है, हम उसको खाना देते हैं, उसमें का वेस्टेज गिरता है और पेड़ के पत्ते भी गिरते हैं, उससे कंपोस्ट तैयार होता है जो 10-26-26 और यूरिया की जगह पे बेसल डोज में हम इस्तेमाल करते हैं। गाय को फर्टिलाइजर खरीदने की जरूरत है? गाय बोले तो फर्टिलाइजर का कारखाना, गाय बोले तो रोज कैश पैसा खर्चा करने के लिए जो लगेगा रोज देने वाली गाय। और जिसके घर में गाय है, आप कभी भी देखेंगे गाय है तो उस एरिया में ऑक्सीजन की लेवल बहुत हाई होती है। जहाँ पे गाय वहां पे ऑक्सीजन लेवल हाई, ऐसा हमने स्लोगन भी बनाया। तो ऑक्सीजन गाय के गोबर में 23% ऑक्सीजन है। सब लोग बोलते हैं कि आदमी को जिंदा रहने के लिए 21% ऑक्सीजन चाहिए, तो उल्टा ज्यादा है। इसलिए पुराने वाली औरतें घर के सामने गोबर डालती थी सुबह 6 बजे। आप हमारे काऊ शेड में आएंगे, बहुत सारे लोग आते, रोज 150 लोग आते 22 साल से। 25 लाख 40 लाख लोग आके गए यहाँ पे। कस्टमर तो रोज आते, वहां से सब्जी उठाते, दूध लेते, गोबर का वो हम लोग काऊ डंग का केक बनाते, गौरी, ये सब लोग खरीदने के लिए तैयार है। तो ये सब सिचुएशन में अगर किसान काम करेगा तो गारंटेड काम होगा, यही लगता है। बाकी 10 गुंठे में हम लोग एक शेड हाउस लगाते, जहाँ पे मैं बैठा हुआ अभी। इस शेड हाउस में ओले गिरे, गारपीट हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा सब्जी गारंटेड 4 टाइम ज्यादा रेट से बेचा जाती है। गारपीट हो गया तो ओपन कल्टीवेशन खराब होता है, उस टाइम शेड हाउस वाला ऑफ सीजन जैसा क्रॉप बेचकर पैसा कमाता है। इसलिए हमने 1 साल में रिपेमेंट करते। बैंक बोलते 7 ईयर में रिपेमेंट कीजिए, हम 1 साल में ही करते, क्योंकि ऑफ सीजन 2 ही मिले तो पैसा ज्यादा मिलता है। कितना भी बारिश हो पैसा मिलता है, ठंडी हो पैसा मिलता है, क्योंकि कंट्रोल फार्मिंग है। तो हर एक इंडिया में हर एक किसान के पास थोड़ा सा कंट्रोल फार्मिंग होना चाहिए। जैसा कि 10,000 स्क्वायर फीट का सिर्फ 10 गुंठे का, और इसको 8 लाख रुपए खर्चा है। 4 लाख रुपए आज भी गवर्नमेंट सब्सिडी देता है उसको। तो 4 लाख में अगर किसान के घर में रोज 1,000 रुपीज आएगा तो और क्या चाहिए। और एक गाय चाहिए जो रोज दूध बेचकर 500-600 रुपए हमारे घर में आएंगे। तो खर्चा करने के लिए रोज 500-600 रुपए हो गया, और जो पॉली हाउस है उसमें से रोज 1,000 रुपए का सब्जी बेचेंगे, 30-40 हजार रुपए घर में आएंगे। तो और क्या चाहिए किसानों को। मैं 1 एकड़ की बात करूँ कि कोई लेबर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। ये 1 एकड़ का इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम लोग काम करते हैं। ओपन कल्टीवेशन में अलग अलग टाइप की 33 टाइप की इंडियन वेजिटेबल लगाते हैं। पॉली हाउस में या शेड हाउस में हम लोग इंग्लिश वेजिटेबल लगाकर मॉल्स को सप्लाई करते हैं। और 1 एकड़ के लिए 20 कस्टमर चाहिए, 20 कस्टमर चाहिए। उसमें से 10 कस्टमर थर्सडे को और 10 कस्टमर संडे को। हम हफ्ते में 2 ही दिन मार्केटिंग करते हैं, बाकी के दिन खेती में काम करते हैं। रोज मार्केटिंग नहीं करने का, फिर पूरा टाइम मार्केटिंग में जाएगा, प्रॉब्लम आएगा। फिर हमने एमबीए वाली औरतें भी रखी थी मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो बहुत महंगा बेचती, बहुत महंगा। मेरा सब्जी था 10 रुपए पाव, 40 रुपीज किलो से मैं नाबार्ड की सोसाइटी में बेचता था। जब एमबीए वाले के पास दिया तो डायरेक्ट 25 रुपए पाव से उन्होंने बेचना शुरू किया। मैं बोला मैडम इतना क्यों रेट बढ़ा रही है आप। बोले कि आप 3,000 देते पेमेंट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें को, हमने पढ़ी लिखी लड़कियां रखी, उनको 25,000 देना पड़ता है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गया। फिर लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। बोले अब इनो का इतना अच्छा नाम है, उनका 100% ऑर्गेनिक देते, सर्टिफिकेशन भी, उनका 10 रुपए पाव और तुम्हारा 25 रुपए पाव, उनका बंद हो गया। लेकिन तब तक उन्होंने 12-15 लाख का खर्चा किया था, वो सब लॉस में गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम प्रोडक्शन कॉस्ट में लोगों को खाना खिलाना है, क्योंकि हमेशा बार्गेनिंग किसानों के साथ होता है, आप देखेंगे। फिर हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया, शेड हाउस किया, गारंटेड फार्मिंग हो गया, और 10 कस्टमर को थर्सडे को और 10 कस्टमर्स को संडे को बेचना शुरू किया। रोज अभी हम लोग 2,000 से 2,500 रुपीज कमा रहे 1 एकड़ से। तो 75,000 60-70 गारंटेड कमाते। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पेमेंट भी उतना ही 8-9 लाख का पैकेज है, वो तो हम कमा रहे। मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर नेचर के साथ। भूख लगी, आप बोले कि आपने नाश्ता किया क्या, मुझे भूख लगी तो मैं यहाँ से कुकुम्बर तोड़ के खाऊंगा, टोमेटो तोड़ के खाऊंगा। मुझे ना उपीट बनाने की जरूरत है, ना पोहे, ना इडली बनाने की जरूरत है, हमारे पास सब कुछ है, उससे अच्छा न्यूट्रिशन वाला। तो कितना अच्छा खेती में है। तो ये किसानों ने देखना चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग के लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें, महिला बचत गट, महिला बचत गट अचार पापड़ बना रहे, कितने दिन वो करेंगे। अचार पापड़ में उनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि रोज नहीं खाते। तो रोज उन्होंने किसान की सब्जी खरीदने, पैकिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग करना है और होम डिलीवरी देनी। बिल्कुल शॉप नहीं डालना है, शॉप भी नहीं चलेंगे, मॉल बंद हो गए। सिस्टम है, हाथ लगाने बिना औरत लेती नहीं। हम लोग बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, हम भी ग्लोव्स पहनकर
पैकिंग करते हैं और ग्लोव्स पहनकर पूरा बास्केट आपका पैक करके घर में होम डिलीवरी देते हैं। सिंपल काम, इसलिए ना कोई बीमारी आएगी और खाना भी 100% आप खाएंगे तो बोलेंगे अरे सब मीठा लगता है, क्योंकि गाय का गोबर गोमूत्र से किया है, बिल्कुल केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। तो प्रोडक्शन कम होता है वहां पे थोड़ा सा, इसलिए महंगा है थोड़ा सा, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी आप लोगों ने, साइंटिस्ट ने, लोगों ने काम करने की जरूरत है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम खर्चे में प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए। उसके लिए काम कीजिए ना आप लोग, क्योंकि आपका ज्ञान लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और किसानों को ज्ञान देंगे और आपका उद्देश्य क्लियर हो जाएगा कि किसान अमीर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस दिन किसान सब छोड़ देंगे फार्मिंग, उस दिन दुनिया में कोई प्रॉब्लम आएगा। हम बाहर कंट्री से नहीं खरीद सकते खाना, तो वो पॉइजन वाला खाना खिला के हमको मारेंगे जल्दी, मेडिसिन का खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे ही देश के किसान, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देश ऑर्गेनिक होना जरूर है। ठीक है, शुरू में थोड़े थोड़े लोग अभी बदलेंगे, लेकिन थोड़े दिन में हमारा देश पूरा ऑर्गेनिक हो जाएगा, आपको अच्छा खाना मिलेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। जैसा फैमिली डॉक्टर है वैसा फैमिली फार्मर क्यों नहीं हो जाएगा। जो मैनेज ने 1 महीने पहले प्रोग्राम रखा था फैमिली फार्मर, हम लोग 22 साल से फैमिली फार्मर है बहुत सारे लोगों के। अभी हम लोग ऑल ओवर इंडिया में 36 लाख कस्टमर को बेच रहे हैं, पूरा ग्रुप मिलकर, और सबको खाना खिला रहे, किसी को कोई बीमारी नहीं है। पैसा देते हमें, थोड़ा सा ज्यादा ही पैसा देते, लोग बोलते हैं बुड़की जी आप इतना पसीना बहा के काम करते आपके किसान, तो हम लोग 1700 रुपए का सब्जी हो गया तो 300 रुपए वापस नहीं मांगते, रहने दो बोलते, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को रहने दो बोलते। कितने अच्छे लोग भी, लेकिन 10% लोग अच्छे, उनकी जिम्मेदारी पे हमको काम करना, लेकिन धीरे धीरे हम सबको बदल देंगे। जब मैनेज जैसे आप जो अफसर लोग हैं, आप और हम इकट्ठा हो जाएंगे तो सबको बदलेंगे। बदलने में टाइम लगेगा, और आप अफसर लोग हैं अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग के, तो सब मिलकर हम लोग एक काम करेंगे। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम दिया, आज वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप घर घर में जाकर सब्जी इकट्ठा करती है, सुबह 7 बजे जाकर क्लीनिंग करती है, ग्रेडिंग करती है, पैकिंग करती है, और पूरा होम डिलीवरी का काम भी वो करते हैं। 3260 टेम्पोज है ऑल ओवर इंडिया में, और जो टेम्पो में मटेरियल भरकर बास्केट तैयार करते हैं। बास्केट का मतलब क्या है, हम सब्जी भी देते, धान भी देते, मिल्क भी देते, फ्रूट भी देते, पनीर भी देते, छाछ भी देते, घी भी देते। अभी सब कुछ हमने शुरू किया। एक ग्रुप होता है धान का, हमारे पास धान नहीं, एक 2 एकड़ में सब्जियां है, तो धान का ग्रुप किया, वो धान ही लगाते, तुअर दाल, मूंग दाल, चना, जवार, बाजरा, गेहूं, सब कुछ। अभी 1 जनवरी से हमने शुरू किया है, किसी का प्लेटलेट्स कम है तो मेडिसिन नहीं खाएगा, उसके लिए क्या सब्जी लगती है, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ बात कर करके सब्जी का बास्केट बनाया, तो प्लेटलेट्स 8 दिन में बढ़ गया। बोले 25 लाख खर्चा करके प्लेटलेट नहीं बढ़ा था, अभी देखो इस सब्जी के पैसे बढ़ रहा है। हमारा भूषण है, शैलेंद्र गाताड़े, जो अलग अलग एरिया में, कोल्हापुर में, सांगली में काम करता है। भूषण पूरा 1.5 लाख का जॉब छोड़कर पूरे ग्रुप के साथ टेक्निकल सिस्टम पे काम कर रहा है। प्रिया जाधव एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, ऐप का इस्तेमाल करके मार्केटिंग सिखाती है, पैकिंग करती है। अरुणाचल के जो पैकिंग का काम करती है, 8वीं 7वीं पढ़ी हुई औरत है। ऐसे प्रमोद है जो मैकेनिज्म में मशीनरी बना रहा है। फिर सुधीर काळे है जो ड्रिप और इस सिस्टम में काम करता है, सोलर पंप में काम करते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग सिस्टम में काम करते, हेल्प करते, लेकिन बहुत सस्ता। क्या होटल है यहाँ पे अहमदनगर में, जहाँ पे हमने 4.5 एकड़ पे सब्जियां लगाई, वहां पे ही छाते डाले और वहां पे लोग खाना खाते हैं। अभी जिनको जो खाना है वो तोड़ के लाने का और हमारे किचन को देने का, वहां पे वेटिंग में है लोग खाना खाने के लिए। हमारा ये सब्जियों में ही बैठने का जगह किया है, छाते लगाए, लोग नीचे बैठते हैं, 8-10 लोगों का फैमिली, और किसी को कुकुम्बर चाहिए कुकुम्बर लाते हैं, सालाड करके खाते हैं। या तो हमारे किचन भी ओपन किचन रखा है वहाँ पे। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड शुरू किया। उधर फर्टिलाइजर लग रहा था 5 लाख का, तो हमारा 100% करके उन्होंने सिर्फ वो फर्टिलाइजर 90,000 में दे दिया, खुद तैयार करके। मतलब पैसा सेव भी होना है, जो पैसा बचता है वही हमारा प्रॉफिट है। पूरा ग्रुप मिलकर सब्जियां, धान, मिल्क और फ्रूट पूरा फ्रेश में काम करते हैं। हम लोग प्रोसेस फूड में अभी काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारी इंडिया में कस्टमर की प्रोसेस फूड के लिए कोई डिमांड ज्यादा नहीं है, ये 1% भी नहीं है। लेकिन सबको फ्रेश फूड चाहिए। आप लोग भी आप देखिए, एक जगह पे प्रोसेस फूड का दुकान है और दूसरी जगह पे सब्जियां, धान, मिल्क, फ्रूट एकदम फ्रेश पैकिंग करके रखा है, तो सब लोगों की लाइन लगती है फ्रेश में। फ्रेश प्रोसेस फूड नहीं खाते हमारे कंट्री में ज्यादा लोग। मैंने मैंगो की 40,000 पेटी बेची, मैंगो, फ्रेश मैंगो, लेकिन मैंगो पल्प पे 4 डब्बे हमारे से कोई खरीद नहीं रहा। इसलिए हम लोग प्रोसेस फूड में नहीं है। अगर डिमांड बढ़ेगा तो हम प्रोसेस में भी आएंगे। हम अभी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट शुरू करके कुछ भी कर सकते हैं। इसमें वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी पैसा मिला। हमारे बहुत सारे कस्टमर है। अभी हमने अभिनव टिफिन चालू किया है। टिफिन बोले तो डब्बा खाने का,
और 120 रुपए में 100 रुपीज में पूरा आईटी के एरिया में अफसर लोगों को टिफिन पहुंच रहा है वहां पे। 6 रिक्शा है, 25 औरतें उसके पास काम कर रही है और 1000 टिफिन का रोज का ऑर्डर है। देखो कितना 1 लाख का बिजनेस एक औरत ने शुरू किया। सिंपल थी, फ्लैट रेंट से था। अभी उसने फ्लैट खरीदा और दूसरा रेंट से जहाँ पे सब्जी ये बनाती तैयार करती, किचन तैयार किया, पूरा एप्रन विप्रन ग्लोव पहनकर। तो ये सब सिस्टम में हम क्यों नहीं काम कर सकते? टिफिन की बहुत जरूरत है। लोग होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं, 500 रुपए बिल होता है 2 लोगों का, और यहाँ पे सिर्फ 100 रुपए में 150 रुपए में दोनों का खाना होता है, और वो भी बिना पॉइजन वाला। लोग बोलते बोड़के जी तुम्हारा टिफिन का खाना खाते, एक चक्कर काटते हैं और दिन भर 12 घंटा बैठते, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले दिन भर हम लोग बैठ के काम था, आईटी में हमारा सॉफ्टवेयर का, तो खुद चेयर पे बैठ के काम था। बोले इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कतें आती थी, अभी कोई नहीं। हजम तुरंत होता है आपका खाना। क्या डालते? और तेल घाने का तेल देते, बिल्कुल ये डबल फिल्टर, ट्रिपल फिल्टर ऐसा कोई तेल नहीं डालते, हम खुद तैयार करते। हमारे 56 तेल घाने ऑल ओवर इन महाराष्ट्र में, और वहां से तेल तैयार औरतों को ही करके दिया है। तेल घाने का तेल भी दे रहे, ऑर्गेनिक जागरी दे रहे, जागरी का पाउडर दे रहे, और ऑर्गेनिक शुगर दे रहे लोगों को, क्योंकि हमको बीमारी नहीं देनी। थोड़ा सा खर्चा ज्यादा होता है, लेकिन हफ्ते का 1000 रुपीज खर्चा क्या है? पूरा रेशन, सब्जी, धान, मिल्क, फ्रूट सब कुछ मिलकर 1000 रुपीज एक 4 लोगों के फैमिली के लिए क्या चाहिए? 1000 में पूरा हफ्ता भर उनको कोई खरीदने की जरूरत नहीं। 5000 4000 का सब्जी सब्जी धान मिल्क फ्रूट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खाने के खर्चे ज्यादा नहीं। आपसे मेरी विनती है, आप सब लोगों से, आप किसानों से खरीदना शुरू कीजिए। किसानों को बोलो ऑर्गेनिक करो, हम तेरे को 2 रुपए ज्यादा देंगे। और किसानों के साथ बार्गेनिंग भी मत कीजिए। लेकिन किसान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेक्निकल देते, हम प्रैक्टिकल काम करते और लोगों को खाना खिलाते। मतलब जो खाना हम आपको बिना पॉइजन वाला खिलाते, वो उसमें आपका हिस्सा है ना। किसानों से खरीदना, टेक्निकल नो हाउ देना, तो ये सब सिस्टम में काम करेंगे। कोई भी टेक्निकल सिस्टम में हम काम करेंगे, सिर्फ वो महंगा नहीं होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा काम कीजिए। तो ये सब सिस्टम में काम होना चाहिए। 100% इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिक्स क्रॉपिंग जरूरी है। मिक्स क्रॉपिंग से क्या होता है? जमीन अच्छी रहती है। एक पहला लिया हैंगिंग क्रॉप, दूसरा लिया कोबी फ्लावर, तीसरा लिया लीफी वेजिटेबल। एक ही बेड पे 3 क्रॉप लेते, लेकिन तीनों क्रॉप अलग अलग लगाते। इसकी वजह से जमीन खराब नहीं होती, जमीन का पोत, जमीन की ताकत बढ़ती जा रही है, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ रहा है। और एक बार ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया तो कुछ भी आप ग्रो करो 100% आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। बीमारियों के लिए जमीन में ताकत चाहिए ना, जमीन में ताकत ही नहीं, इसलिए बीमारी आती बार बार। ऐसे बहुत सारे बास्केट हम लोग बना रहे, सोराइसिस है उसके लिए कौन सा बास्केट, एक औरत बोली कि कैल्शियम का प्रॉब्लम है, कैल्शियम के लिए कौन सा बास्केट। इसलिए हम सिर्फ खेती ही नहीं करते, सर्विस भी देते कस्टमर को, और सर्विस दिया तो लोग पैसा देने के लिए तैयार है। तो ये काम दुनिया के सब किसानों ने करना चाहिए, क्योंकि कस्टमर हमारे लिए भगवान है, जो खरीदता है और पैसा देता है। तो ये होना बहुत जरूरी है। और सिस्टमेटिकली मैनेज इस सिस्टम में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम भी मैनेज के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप दिखाने के लिए आपके फॉरेनर भी लोग हमारे यहाँ पे आते थे, बहुत सारे विजिट हमारे पास हो गया, 50-60 विजिट हो गया। डॉक्टर चंद्रशेखरा लेके आते थे। खेती में बहुत मजा है। सब किसानों से विनती है कि आप एक क्रॉप मत कीजिए, 10-15 क्रॉप कीजिए। 2 क्रॉप के रेट गिर गए तो 13 के रेट बढ़ गए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा किसके रेट गिर गए। एक ही क्रॉप के और उसके रेट गिर गए, तो आज क्या हालत है, ग्रेप्स वालों की क्या हालत है, अनार वालों की क्या हालत है, बनाना वालों की क्या हालत है, बहुत बुरी हालत है। मैंगो वालों की क्या हालत है, परवड़ता ही नहीं किसी को भी। सब खर्चे इतने बढ़ गए और इतना केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लोग खाते भी नहीं वो चीजों को, बोलते बहुत केमिकल है उसमें। तो मेरी विनती है कि खाने की चीज में केमिकल नहीं चाहिए, बहुत बीमारियां है। अभिनव ग्रुप का काम छोटे किसानों के लिए, किसान तो आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, हम लोग भी आपके साथ हैं। बाकी तो ग्रुप में ऐसा काम हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अभी इंजीनियर बनकर मशीनरी बनाने के लिए ला रहे, रोज गाय का दूध निकाल के दूध पैकिंग करके बेच रहे। लड़कियों को हम लोग ऐप और उस सिस्टम में ला रहे। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होती है हमारी भी लड़कियां, लेकिन सब ऐप उसमें पैकिंग ग्रेडिंग में, टेम्पो भी चलाती है लड़कियां। अभी हम लोग ई रिक्शा लेने वाले इलेक्ट्रिकल, हमारे पास जो टेम्पो है उसको रिप्लेस करके छोटी छोटी रिक्शा भी इलेक्ट्रिक की ले रहे, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें चलाएंगी, और उसको डीजल का पेट्रोल का खर्चा भी कम होगा। और ये सब सिस्टम है, हम किसान लोग इकट्ठा नहीं आ सकते, इसलिए मैंने अकेले में मेरा प्रोजेक्ट शुरू किया 1 एकड़ का, और अकेला 20 कस्टमर ढूंढा मैंने। और 20 कस्टमर को मैंने पहला सब्जियां देना शुरू किया। उनको बोला सर जी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें सब्जियां है मेरे पास, धान है मेरे पास, मिल्क है, फ्रूट है, और गाय भी है, तो दूध भी मिलेगा, गोबर भी मिलेगा,
काउ यूरिन भी मिलेगा, ये सब मिलेगा, मैं देने के लिए तैयार है। तो मैंने उनको फोन कर किया, तो वो बोले एक बार आइए। तो मैं 20 कस्टमर को जाकर मिला उनके घर में, बोला हम ऐसे ऐसे कर रहे। मैंने कुछ फोटोग्राफ लिया था मेरे जमीन का, वो बोले हमको फार्म पे, फील्ड पे आना है। तो मैंने फील्ड पे लेके आया और उनको सब दिखाया। उनका विश्वास बैठा कि बिल्कुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, 100% गाय है, तो गाय का गोबर है इनके साथ। वो खुश हो गए। फिर 2 महीने बाद मेरा हार्वेस्टिंग शुरू हो गया। तो मेरे पास था इंडियन वेजिटेबल में एक हैंगिंग क्रॉप 5-6 टाइप के, जैसे लौकी है, तुरी है, करेला है, कुकुम्बर है, टोमेटोज है। दूसरे प्लॉट में मैंने लगाया था गोभी, फ्लावर, गवार, भिंडी, भरीत वाला बैंगन, कांटे वाला बैंगन, ये फ्रूट वेजिटेबल। और तीसरे प्लॉट में मैंने लगाया था लीफी वेजिटेबल, पालक है, धनिया है, मेथी है, लाल माठ है, चौलई है, ऐसे अलग अलग टाइप की 7 वैरायटी लीफी वेजिटेबल, 7 वैरायटी फ्रूट वेजिटेबल और 7 वैरायटी हैंगिंग क्रॉप। ऐसी 21 टाइप हो गए। और पॉली हाउस के अंदर मैंने ब्रोकोली, चाइनीज कैबेज, सेलरी, पार्सली, जुकीनी, चेरी टोमेटो, ये 7 टाइप। तो ऐसे 28 से 30 टाइप के मेरे पास क्रॉप थे। उसका लिस्ट मैंने दिखाया, कस्टमर ने सबका ऑर्डर दिया थोड़ा थोड़ा। ऐसा थोड़ा थोड़ा मिलकर एक कस्टमर का 300 रुपीज का ऑर्डर हो गया। और फिर मेरे बॉर्डर पे मैंने फ्रूट का प्लांटेशन किया है, बांध बोलते हैं हम लोग, खेती के बॉर्डर पे, जिसमें पपीता है, बनाना है, पेरू है, एप्पल बोर है, संतरी है, मौसम्बी है, जामुन है, सबके पेड़ है। तो हर सीजन में उसको फ्रूट आते, तो हम खाते हैं और बाकी का पाव किलो का जामुन का पैकिंग करते हैं। 100 रुपए में पुणे में पाव किलो खरीदते हैं जामुन। अभी शुगर के लिए जामुन का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, सुबह खा रहे 2-3, शाम को खा रहे, तो जामुन भी पैकिंग कर। तो 500 रुपए का एक का बास्केट हो गया। तो थर्सडे को मैं गया, 10 लोगों को 500 के, तो 5000 रुपीज का पूरा बेच आया मैं, 10 बास्केट। तो वो मैंने उसके लिए टेम्पो रेंट से करने का, तो टेम्पो वालों ने 1200 रुपए मांगा। मैं बोला नहीं। फिर मैंने कार में डाल दिया, 200 रुपए का पेट्रोल लगता है कार को, मेरी कार तो मारुति में, कार में लेके गया और वो बास्केट दे के आया। मतलब 5000 के लिए मेरा 200-300 रुपए गया, जाने दो ना। 5000 मिल रहा है, उसमें से 300 रुपीज ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा अकेले के लिए। संडे को भी वैसा 5000 का बास्केट दिया, 200-300 रुपए का। और कस्टमर के साथ जाते थे, बातें होती थी। तो कस्टमर ने क्या किया, बाकी लोगों को भी बोलना शुरू करे इनका सब्जी बहुत अच्छा होता है, और 500 रुपए में ये पूरा बास्केट देते हमको। तो उन्होंने और 20-40 कस्टमर दिए। मेरे पास तो जमीन नहीं है, कस्टमर तो बढ़ गए, क्या करने का। फिर किसान आते थे मेरे पास, बोलते थे अरे आपका अच्छा चल रहा है, आपके पास साइकिल था, अभी मारुति 800 खरीदा। मैं बोला सब्जी का रोज पैसा कमा रहा हूँ। तो बोले हमको भी करना है। तो मैं बोला ये क्रॉप लगाओ। फिर उनका भी माल मैंने खरीद कर बेचना शुरू किया। मैंने उसको पहला उसका नंबर दिया कस्टमर का। तो उन्होंने क्या किया, 20 किलो कैबेज की जरूरत थी, 200 किलो लेके गए। और कस्टमर को बोले कि पूरा ले लो, बोले नहीं हमको उतना ही चाहिए 20 किलो। नहीं नहीं, बोले आधे दाम में दे दो। फिर मेरे ध्यान में आया कि ये मेरा भी रेट कम कर रहे। फिर मैंने उनको कस्टमर देना बंद किया और डायरेक्ट हमने खरीदना शुरू किया। कौन खरीदेगा, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोला कि आपको हम पैसा देंगे, आपको भी परसेंटेज देंगे। तो खरीदना शुरू किया और 20-40 कस्टमर को भी देना शुरू किया। एक ही बार आपको किसानों को मार्केट का सर्वे करना है। सर्वे बोले तो आपका एक इंस्टीट्यूट है, एक बैंक है, जहाँ पे 20-25 लोग काम करते, एक सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, जिसमें 300 फ्लैट है, 50 तो मिल जाएंगे, 20 तो मिल जाएंगे। उनको जाकर डेमो रखना है, उसके बाद आपको गारंटेड कस्टमर मिल जाएंगे। तो ऐसा कस्टमर का काम आपको करना है। और पूरा काम किसान नहीं कर सकता, इसलिए किसान की वाइफ है, उसको मार्केटिंग दे दो। हम फार्मिंग करते हैं, वो मार्केटिंग करती है। ऐसा काम होना बहुत जरूरी है। क्या ये दोनों भी एक में लगेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। औरतों का पढ़ाई लिखाई नहीं हो गया तो भी चलता है, क्योंकि औरत औरत तक जब पहुंच सकती है किचन में औरत ही काम करती है। तो ये डायरेक्ट किचन तक जाकर उसको रेसिपी, मेडिसिनल वैल्यू, सूप कैसा बनाने का, ये सब हमने सिखाया है। बहुत अच्छे जो अच्छी औरतें खाना बनाती है, उनको उनके लेक्चर रखते हैं उनके लिए, उनके साथ 2 दिन का मेला रखते हैं। ऐसा काम मार्केटिंग का करने का है। एक ही बार आपको कस्टमर ढूंढने और सर्विस अच्छी देनी है। आपको बार बार कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं, अपने आप कस्टमर आएंगे, क्योंकि कस्टमर माउथ पब्लिसिटी करते बिना पैसा दिए हुए। उनको पैसा देने की जरूरत नहीं ऐड करने के लिए, वही ऐड करते अपने आप। बोलते अरे बोड़के का सब्जी बहुत अच्छा है, बोलते दे दो नंबर। नंबर आता है, बोलते बोड़के जी हमें सब्जी चाहिए। मैं बोला मैडम एक आदमी के लिए नहीं परवड़ता, कार का 300 रुपए और 300 की सब्जी खरीदेंगे। बोलते कितने कस्टमर चाहिए। मैं बोला 10-20। बोले 25 लोगों के मेरे फ्रेंड है 25 लोग, उनका लिस्ट देते हो, काम खत्म। ये काम करना 100% किसानों का बोलना सही चाहिए, तो सिस्टमेटिक वो करेंगे। महिला का ग्रुप भी बन गया मार्केटिंग के लिए, किसानों का ग्रुप भी बनाया उपज के लिए। अभी मेरे पास यहाँ पे 305 किसान है, 305।
तो सबका मिलकर 874 एकड़ लैंड है। तो कस्टमर की जो डिमांड है अलग अलग किसान तैयार करते हैं, हम हफ्ते में 3 दिन उसको इकट्ठा करते हैं, क्लीनिंग ग्रेडिंग पैकिंग करते हैं और बेचते हैं। मार्केटिंग के लिए अलग टीम है। ये कौन काम कर रहा है? 4-5 साल के बाद हमने मार्केटिंग टीम लगाया, तब तक अपना अपना किसान बेचता था, क्योंकि रोज का मुझे मार्केटिंग और मेरा घर में ध्यान नहीं था खेती के ऊपर, इसलिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाया। इतनी अच्छी काम करती वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें, जो औरत 50 रुपए नहीं भर सकती वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में, आज उन औरतों के पास सबके पास कार है, और कार में हमारा सब्जी लेकर उनके लड़कों को उन्होंने ग्रेजुएट करके ड्राइवर रखा है। बोलते तेरे को रोज 2000 रुपीज मिलेगा, 2000 मिलता है, उसमें से 1000 खर्चा होता है, 1000 नेट प्रॉफिट है। ये लड़के दोपहर को 2 बजे निकलते हैं घर से, शाम को 7 बजे डिलीवरी देके वापस आते हैं, 2000 मिलता है उनको। तो ड्राइवर बनाए उन लड़कों को, क्योंकि जॉब नहीं है। लेकिन ये लड़के 30-30, 40-40 हजार रुपए कमा रहे एकदम मजे में। सर्विस देते हैं लोगों को, क्रेट उठा के उनके गाड़ी में रखते, ऐसा बहुत सारा सिस्टम करते। दूध भी 8-8, 10-10 दिन का दूध एक साथ खरीदते हैं लोग, बिल्कुल पाश्चराइजेशन वोमनाइजेशन कुछ भी नहीं, प्योर दूध। सिर्फ दूध निकालते, छाननी से बॉटल भरते, या तो बैग में सील करके लोगों के घर में देते। 8-8, 10-10 दिन दूध को कुछ भी नहीं होता, फ्रिज में रखना पड़ता है। मतलब ये सब सिस्टम में हमें काम होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा काम करते। दूसरा है मार्केटिंग का, तो मार्केटिंग का मैंने बोला, संगठन का मैंने बोला, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है आत्मा। आत्मा में ग्रुप रजिस्टर करना है और ग्रुप में काम होना चाहिए। पहला ग्रुप में काम कीजिए, एक बार 10-20 ग्रुप अच्छे काम कर रहे तो फिर प्रोड्यूसर कंपनी कीजिए, करने का है तो। मैनेज ने मुझे मौका दिया अच्छे लोगों के साथ बात करने का, और इस मौके का फायदा लेकर जो भी लोग काम करेंगे, हम सबके साथ काम करने के लिए तैयार है। इतना ही मुझे बात करना है। धन्यवाद। Any questions? मैडम, मैं आरबी तिवारी बोल रहा हूँ IHR से। ये आपने बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। एक्चुअली इस पूरे एक्सपीरियंस और काम करने में जो हमारे पारंपरिक जो एक्सटेंशन वर्क है और जो आपने किया है, आपने पैदा करने से लेकर के और किसानों तक किसानों के रूप में काम करके उनको जोड़ने के साथ साथ में आपने पूरा पैदावार को, उत्पाद को जो है वो उपभोक्ता तक पहुंचाया है। पूरी वैल्यू चेन पर आपने काम किया है। लेकिन पिछले 70 वर्ष से हमारे देश ने कभी भी खाली पैदा करो, उसको कैसे उपयोग किया जाएगा, उपयोग करने के लिए क्या करना होगा, जो खाने वाला है उसको क्या चाहिए, इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप अपने अनुभव को ऐसे ही अगली बार भी शेयर करिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, मैं तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान से हूँ, और सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे यहाँ फल सब्जियों की आती है कि इसको फल सब्जियों को कैसे अच्छी तरीके से बिना ये पेस्टिसाइड का वो किया जाए। हम लोग खुद भी खाते हैं तो डरते हैं कि कहीं ये इम्पोर्टेड वाला सेब है, इम्पोर्टेड वाला पोमग्रेनेट है, उसमें कितना पेस्टिसाइड आ रहा है। तो ये जो है हम अपने ही किसानों को अच्छा से अच्छा पैदा करने के लिए उसको वो करें। तो ये बताइए कि यदि इस मॉडल को दूसरे प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में लागू करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपका कोई परिचय है, कोई आदमी है उत्तर प्रदेश का? हाँ जी सर जी, हम लोग महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करते हर हफ्ते को, फ्राइडे सैटरडे संडे। उस ट्रेनिंग में सिखाते, उसके बाद पूरा सपोर्ट हम लोग थ्रू व्हाट्सएप सब लोगों को करते। इंडिया में कहीं पे भी हो, कौन सा भी जमीन हो, कौन सा भी मट्टी हो, पानी उसके पास कितना है, उसी के ऊपर कैसा करना है, ये सब हम उनके साथ रहकर करते। और उनको मार्केटिंग का भी सपोर्ट देते। उनको ऐप चाहिए तो बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगाए हुए वो ऐप देते, और ऐप के थ्रू हमारा वीडियोज भी लोगों को दिखाते हैं। आपके एरिया में समझो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, किधर भी, गुजरात है, पूरा हेल्प करेंगे। लेकिन 3 दिन के लिए पुणे में आना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये वातावरण होता है ना, सराउंडिंग, इस सराउंडिंग में 3 दिन रहे तो अपने आप चेंज होते हैं। हमको माइंड सेट करना है। किसान तो फार्मिंग करता ही है, सिर्फ यहाँ पे माइंड सेट करके हम लोग बेचते हैं तो 100% काम करता है। मैं ये बोलना चाहूँगा बोधके साहब को कि ही इज डूइंग अ वेरी स्मार्ट एग्रीकल्चर, बेसिकली व्हाट डिमांड्स द कंट्री। अभी जो नीड है फार्मर्स को अंडरस्टैंड करने की कि हमें क्या उगाना है, तो इन्होंने बहुत ही स्मार्ट एग्रीकल्चर शुरू से ही किया है, क्योंकि ये हमेशा ये देखते ना कि मार्केट क्या डिमांड करता है, कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, उसके हिसाब से इन्होंने अपने प्रोडक्शन का ट्रेंड को चेंज करते रहे। लेकिन यही चीज हम लोग के यहाँ सबसे बड़ी कमी देखी जाती है, हमारे स्टेट में भी है, कि फार्मर्स पहले उगा लेते हैं, उसके बाद फिर वो मार्केट ढूंढने के लिए जाते हैं। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। द स्मार्ट एग्रीकल्चर इज दैट व्हाट मिस्टर बोधके इज डूइंग ऑन। तो हमें भी इस चीज को करने की जरूरत है।
थैंक यू सर, यही कहना चाहूँगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको हमारे पूरे मैनेज परिवार की ओर से ढेर सारा साधुवाद। इतनी हिम्मत के साथ आप हर मुश्किलों का सामना किए। आप आज एक जागृत उदाहरण है कि अगर हौसला है तो मुमकिन है, और इसके साथ छोटे छोटे कदम लेकर सफलता की सीढ़ी बनाए एवं दूसरों को साथ लेकर इस सीढ़ी पर चढ़े। आप अन्य किसानों के साथ साथ आज के युवा पीढ़ी के लिए भी उदाहरण है। आप अपने निरंतर प्रयत्न और प्रयास से नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिए। आज के पूरे वक्तव्य के माध्यम से आपने कृषि के इतने सारे महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाले हैं कि जिसे सुनने के बाद हम सब आशा करते हैं कि सभी श्रोताओं में कृषि को लेकर एक सकारात्मक सोच का संचार प्रसार शुरू हुआ होगा। आप जैविक खेती, कृषि उत्पाद का सही एवं प्रत्यक्ष विपणन, फसलों की सटीक योजना बनाना, स्वच्छ पैकेजिंग, बायोगैस, कृषि सहयोगी उद्यम, कृषि उत्पादक संगठन जैसे जटिल परिकल्पनाओं को कितनी सरलता के साथ समझाया। आप न्यूट्री सेंसिटिव थेरेप्यूटिक एग्रीकल्चर जैसे नूतन परिकल्पना को लेकर बात किए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, मूल्य संवर्धन पद्धति इत्यादि पर भी प्रकाश डालें। आप देसी एवं घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे अपने जीवन को आसानी से रोग मुक्त होकर जिए वह भी बताए। आपकी कृषि को लेकर जो सोच है वह बहुत खास इसलिए भी है कि आप किसान एवं किसान परिवार की संपूर्ण विकास पर जोर दिए। आप कृषि विज्ञान, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पोषण विज्ञान, कृषि संचार प्रसार, कृषि विपणन जैसे कठिन अवधारणाओं को ठोस रूप से समझाए। सच, आपका पूरा जीवन आप बीती एवं जीवनी एक अदम्य उदाहरण है हम सब के लिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ज्ञानेश्वर जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करके शायद आप किसी किसान को पूछिए एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल या नहीं, बहुत किसान बोलता है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, हम कंटिन्यू नहीं करना है। बट आप अलग तरीके से इसको आप एग्रीकल्चर कैसा प्रॉफिटेबल ऐसा बताया है, और ये मैसेज सभी किसान को पहुंचना है। बहुत अच्छा टॉक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हम बहुत आभारी हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।